बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई नो हमारे लेक्चर्स एंड हो गए हैं, बट फॉर योर एग्ज़ाम परस्पेक्टिव आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 more lectures for you, जिसके लिए because I've covered these topics in your exam and it's mandatory for you guys to know these topics. So in arrays we're going to read or study another subtopic which is called two-dimensional arrays. Arrays can be multi-dimensional, मतलब एक से ज़्यादा डायमेंशन हो सकती हैं उनकी। इन द पास्ट हमने एक डायमेंशन की अरे को डिस्कस किया था। वन डायमेंशनल अरे में सिर्फ एक कॉलम होती है, या एक्चुअली वी आर गोइंग टू कॉल इट रो। जस्ट एक रो होती है जो पॉपुलेटेड होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन। इसके आज के लेक्चर में हम टू डायमेंशनल अरेज की बात करेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि वो है क्या है, उनको डिक्लेयर कैसे करना है, उनको इनिशियलाइज कैसे करना है और उनके एलिमेंट्स को असेस कैसे करना है। उसके बाद इनपुटिंग दोज एलिमेंट्स एंड आउटपुटिंग, सो बेसिकली ऑल द ऑपरेशंस। ओके, a two-dimensional array is the arrangement of these elements in rows and columns. So it has two indices, one for the row and other for the column. So as the name suggests, two-dimensional array. That means first dimension will be for the row, second dimension will be for the column. First index represents the number of rows and second index represents the number of columns. So एक array में, this is an array of integer type called list. इसका first index ये है, second index ये है during declaration. So पहले index में हम number of rows को रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड इंडेक्स में हम नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज अ 4x4 array, which means it's going to have 4 rows, 1 2 3 4 and 4 columns, 1 2 3 4, which can be populated and assessed. So इसकी डिक्लेरेशन में आता है, look at the signature of declaring a two-dimensional array. सबसे पहले data type, for example integer, string वगैरह जो भी. Second is the name of the array, you can name it anything. उसके बाद first index में number of rows जो हमारे पास आएंगी and second index में number of columns. So it's going to be easy, you just need to know the signature. So let's declare an array of integer type with 4x4, 4 rows and 4 columns. So यहाँ पे data type हमारा integer है, name इसका list है, number of rows are 4, number of columns are 4. So what we're going to do is we're going to look at how their indices are addressed. तो जब हम देखेंगे हर row, first of all let's look at the row. So this is a row, each row is going to have 0 1 2 3 address. क्योंकि अगर एक हम 4 की सिर्फ array बनाते, let's pretend that we don't have a 4 here, we don't have number of columns here, we just have the row which has 4. It doesn't mean we're going to have 4 rows. जब हम बगैर one dimensional array बनाते, that means our array is always going to have one row और उसके अंदर जो elements होंगे उसका size हो जाता है. But right now in two-dimensional we're going to declare the number of rows and number of columns. So 4 rows होगी, वो होगी 1 2 3 4, 4 columns होगी 1 2 3 4. So this is the total number of elements that can be placed in your array will be 4x4, which is 16. So how do we assess each element? तो इसका एड्रेस, उसके इंडेक्सेस का एड्रेस, इंडेक्स ईच अरे का इंडेक्स कुछ ऐसे होता है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर 0 1 2 3. ये 0 रो है, 0th रो है, फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड. तो इसके जो ईच एलिमेंट को हम देखेंगे, ईच रो इज गोइंग टू हैव अ 0 1 2 3 तक एलिमेंट. ईच रो में 4 एलिमेंट होंगे. तो अगर मैंने पहली रो के पहले एलिमेंट को असेस करना है तो उसको कैसे करेंगे? दिस वन. सो वी आर गोइंग टू लुक एट इट्स कॉलम
index which is 0 and then we're going to look at its row index which is going to be 0. So अगर मैं सी आउट करूँगा लिस्ट 0 0 तो इस इंडेक्स में जो भी मेरे पास एलिमेंट होगा वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा. एंड इन द सेम वे what if I want to find this? I want to find the third row in the third column. So third will be 2 because addresses will in programming we start from 0. This is 1 2 3 third row and the third column which is here. So I'm going to have to input list 2 2. So what if I want the second yes, I want the third row and the first column which is going to be third row होगी तो उसका एड्रेस होगा 1 2 3 2. दैट मीन्स थर्ड रो हमारे 2 के इंडेक्स में मिलेगी और उसके सेकंड कॉलम हमारे पास 1 पे आएगा because we start from 0. So for that I'm going to see out list 2 and 1. So this is a simple table. You just have to map them out like this. Rows के ऊपर आपने separate 0 1 2 columns ये हैं 0 1 2 3 rows are 0 1 2 3. तो इनमें से जो भी हमने access करना है we can just figure it out from this mapping. So two-dimensional array की declarations में this is an integer of number of employees जो कि 15 employees होंगे and 9 उसके अंदर सब हर एम्प्लॉय के अंदर 15 एम्प्लॉय के अंदर उसकी 9 अवेलेबल स्लॉट्स होंगे जिसको हम फिल कर सकते हैं. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं 15 कंपनीज ऐड कर सकते हैं एंड 9 डिपार्टमेंट्स. इस तरह फ्लोट मार्क्स 20 स्टूडेंट्स और समझ लें मेरे पास इसकी एग्जांपल देता हूँ. मेरे पास एक रोज एंड कॉलम्स का टेबल आ जाएगा इन दिस मार्क्स. मेरे पास समझ लें अगर मैंने 20 रोज बनाई है तो उसमें मैं 20 स्टूडेंट्स को सेट कर सकता हूँ. समझे आप ही 20 स्टूडेंट्स हैं लेकिन इन द 5 सेक्शन में आपके हर सब्जेक्ट के नंबर ऐड कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल इंग्लिश उर्दू मैथ्स फिजिक्स वगैरह. तो हर एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मेरे पास पहली इंडेक्स में है एक स्टूडेंट हमजा. सो ही विल बी इन द इंडेक्स 0 मार्क्स 0 और उसके 1 पे मुझे उसके कौन से मार्क्स मिलेंगे इंग्लिश उर्दू. सो उर्दू के मार्क्स मिलेंगे. 0 0 पे मुझे इंग्लिश के मार्क्स मिलेंगे. इसी तरह दैट्स हाउ वी यूज दिस अरेज. हाउ डू वी इनिशियलाइज देम? देयर आर 2 ways टू इनिशियलाइज देम. फर्स्ट वे इज लाइक दिस. जैसे कि हमने 1D अरे को इनिशियलाइज किया था. हमने a list of 4 columns and 4 rows and 2 columns. So 1 2 3 4 rows and हर रो के अंदर 2 स्लॉट्स हैं जिनको हम फिल कर सकते हैं. तो दैट मीन्स हमने 4 रोज के अंदर 2 एलिमेंट्स फिल करने हैं which in this type is integer. You guys can't see it but this is an integer type list array. तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए मुझे 2 इंटीजर वैल्यूज देनी पड़ेंगी वो भी 4 दफ़ा हर रो की. उसके अलावा द सेकेंड वे ऑफ इनिशियलाइजिंग दिस इज लाइक दिस. दिस इज द 4 into 2 array. दैट मीन्स टोटल एलिमेंट्स इसमें 8 होंगे. इफ आई मल्टीप्लाई माई नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम्स दैट मीन्स इतने एलिमेंट्स हैं. तो अगर मैं इंटायरली इसको इनिशियलाइज करूंगा इसको मल्टीप्लाई करूंगा विच इज़ 8 तो 8 एलिमेंट्स मैंने इसमें डालने हैं विच इज़ 20 25 वगैरह वगैरह. सो इस तरह भी सेम इस तरह दीज आर 2 ways ऑफ इनिशियलाइजिंग दिस अरे. इस तरह भी पूरे एलिमेंट्स हम कर सकते हैं इसमें इनिशियलाइज. सो लेट्स थिंक ऑफ अ लॉजिकल थिंग. इन ईच ऑफ दीज अरेज के एड्रेसेस कैसे होंगे. सो देयर आर 4 rows and 2 columns. So that means 0 ये 0 का पहला होगा 0 0 1 0 2 0 3 0. So इस पहले रो के एलिमेंट्स ये होंगे. So this is the first row
it's more explained easier on this chart. I can't move it a little more forward, लेकिन मैं इसको okay, let me just tell you guys कि हमारी लिस्ट की 0 एलिमेंट पे 20 है, this one. आफ्टर दैट हमारी लिस्ट के 0 1 एलिमेंट पे, दिस इज 0 and 1 पे 25 है. So each of our row is going to have two columns, 0 and 1. 0 और 1 के बाद the row number will shift. तो यहाँ पे पहले हमारे फर्स्ट रो विच इज गोइंग टू बी 0 के पहला एलिमेंट 20 है, सेकेंड इज 25. तो 0 और 1 फिल हो गया. 1 के बाद आई एम गोइंग टू चेंज द नंबर ऑफ द रो विच इज 1. ओके, अब 1 का भी 0 और 1 एलिमेंट होगा. 1 का 0 एलिमेंट है 22, 1 एलिमेंट है 24. बिकॉज देयर आर ओनली टू कॉलम्स, तो 1 के बाद देयर इजंट एनी 2, 0 1 ही आर द इंडिसेस. सो हम चले जाएंगे नेक्स्ट रो पे विच इज 2. तो 2 is also going to have a 0 element and 1 element which is 18 22. 1 के बाद it's going to change the row, so it's going to be the row which is the fourth row, but उसका index है 3 because we start from 0. So 3 0 and 3, 1 will be 17 and 24. So this is how its memory representation is. So this is initializing an unsized two dimensional array. ये भी आप लोग नोट कर ले कि टू डायमेंशनल अरेज में अगर हम रोज के साइज को नहीं डिटरमिन करते, वी हैव टू राइट द साइज ऑफ द कॉलम्स. तो जब हम उसको इनिशियलाइज करेंगे तो कंपाइलर खुद ही उसकी रोज को काउंट कर लेगा. मतलब हर 2 एलिमेंट्स के बाद वो रो को चेंज करता जाएगा, उसके बाद उसको खुद ही इनिशियलाइज कर लेगा. Okay, assessing two dimensional arrays, I told you guys already. Consider this is a 3 into 3 array. A 3 into 3 array is of the total size 9. तो तीन एलिमेंट्स के बाद रो चेंज होती जाएगी. दिस मीन्स फर्स्ट 3, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस सेकंड 3, दिस इज सेकंड रो. ओके, सो इस रो में हमारे कुछ एलिमेंट्स नहीं हुए. एक्चुअली वी जस्ट मिस्ड 1 विच इज 45. यहाँ पे 56 के बाद 45 भी इनिशियलाइज हुआ है. दिस इज अ मिस्टेक इन दिस स्लाइड. सो 90 56 समझ ले आप, ये सारे इनिशियलाइज हुए हैं. तो इफ आई वांट टू इनिशियलाइज which one, 1 is going to be the second row which is after 3. Yes, this is 176 and 1 first element here. We can just make a chart over here. आप लोग इसको ऐसे मैप कर सकते हैं. 90 56 45, उसके बाद नेक्स्ट 3, हाँ जी नेक्स्ट 3 हमारा 45 इधर मिस है, तो नेक्स्ट 3 आर 88 76 एंड 99. उसके बाद 17 69 97 एंड 24, 69 97 24. इस तरह आप लोगों ने मैप कर लिए. So it's a 3 into 3. You write 0 1 2 here and 0 1 2 here. When you write those things, जब आप you guys can map it from here. So 0 row and 0 column is 90, 0 row and first column is 56, 0 row and second column is 45. उसी तरह first row and 0th column is 88, first row and first column is 76. उसी तरह second row is over here 0 1 2 and the 0th element is this one which is the 0 1 2 3. This is the 0th element. This is how you display or assess two-dimensional array elements. At the last, we're going to do inputting the values in two-dimensional arrays. It's the same process, just हमने एक nested loop बनाना है for a for loop which is nested for a I and for a j integer. So they're going to be nested in one another. उसमें सिर्फ in the nested one, in the first loop, we're going to put the value of the row, and in the second we're going to put the value of the column. So इस तरह फिर आप cn करें जो भी आपके array की name है, तो it's going to cin every single element one at a time.
Okay, so this is what you guys can do. Just copy this same code and then you'll have to, हर iteration पे आप लोगों ने यहाँ पे सी आउट भी लिखना है, enter the, फिर लिस्ट आई जे को सी आउट कर लें दिस एलिमेंट ऑफ द अरे, तो फिर आप एक एक बार सी आउट करके सी इन करके उसके एलिमेंट्स रख के फिर सी आउट करेंगे टोटल अरे को इन द सेम फॉर लूप लगा के यहाँ पे सी आउट करेंगे तो हर एलिमेंट आपका डिस्प्ले भी हो जाएगा. Okay, operations, this isn't important. Okay, so ये वाली source मैं आप लोगों को दे दूंगा. This is the whole program that I just explained to you guys, and this is the how the output will look like. So this lecture is finished. I hope you guys can do the exam well. वैसे इतना मुश्किल एग्जाम नहीं, it's kind of easy. और I'm going to provide you with this source as well ताकि आप लोग 2D arrays भी फिनिश कर दें. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.